So what is an SEO study? है क्या ये? An SEO study is a long-term plan outlining how you will improve your website visibility in unpaid search engine results, also known as organic search results. ठीक है? क्या करना? It's a long-term outline planning. Understand? Traditionally, an SEO study has covered the three core aspects of search engine optimization, which are on-page SEO, off-page SEO, and technical SEO. सारा आप चुके हैं कैसे करें, ठीक है? अब on-page पे क्या है? Increase the relevancy, quality of specific web pages, and off-page पे क्या? Getting other people to talk about your brand and link to your website means you have to create some backlinking. Technical SEO, making your website perform better for user and search engine, ठीक है? अच्छा. टेक्निकल एसईओ हमने कल किया था, किसी को पता है कल क्या किया था? यस्टरडे व्हाट वी डिड अबाउट टेक्निकल एसईओ? गूगल एनालिटिक्स उसको सेट किया था, एक और किया था गूगल ट्रेंड्स, एड्स, बड़ा मेन काम हमने किया था कल टेक्निकल एसईओ। सर वो जो पेज में है मतलब और आपने लोगो वगैरह में सर वो जो very important thing. I showed you how to do it manually. Maybe आप प्रमोशन था रोज की है। No. सर पैराग्राफ No. सर वो आपने बताया कि इसको मैनुअली कैसे हमने ऐड को रन वगैरह करना। हाँ नहीं सर नहीं वो जो आपने हमारी वो ऐड की थी URL जिसमें ऐड किया था वो सारा और वो मेरे अभी ना माइंड में आया था तो एग्जैक्ट था क्या लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि वो सारा वही इसके साथ XML साइट में XML सबसे प्यारा काम यस सर ठीक है? You should remember it. Okay? That said, brands are increasingly focused on creating a generative engine optimization that's GEO strategy to drive visibility AI concept. अच्छा ये एक नई टर्म है GEO. SEO GEO means to generative engine optimization. ये खुद दोनों हो जाता है, खुद दोनों कैसे हो जाता है? When you list your website on Google, Google का क्या है? सर AI Gemini. ChatGPT किसका है? ChatGPT Microsoft. गूगल स्प्रेडशीट तो वो ऑटोमेटिकली उस पर लिस्ट हो जाता है, बट यू हैव टू डू इट नाइस, ठीक है? अच्छा अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आई वांट टू शो यू ये है क्या, ठीक है ना? व्हाई important having an SEO strategy is important for growing visibility in search engine because it helps you make smarter decisions, keep your team aligned, and use resources more effectively. And strong SEO strategy increases your chance of earning impressions, attracting traffic, and driving conversion at a relatively low cost. ठीक है ना? अच्छा ये सब आपको पता है, we have already done it. Let's see कि इसका असल मकसद है क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है? Step 1 क्या है? To perform keyword research. ठीक है ना? कि पता हो कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे लिस्ट हो रहा है, कहाँ पे आप इसको रैंक करवाएंगे। सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करना उसका, ठीक है? The first step to create associated performing SEO keyword research. Simple हो, don't go in deep. अच्छा अब इसका क्या मकसद क्या है? सबसे पहले the buyers जर्नी के आपका जो वायर है, आपका जो यूजर है वो आता है तो करता क्या है? सबसे पहले what you need to do first to create awareness about your product. The consumer becomes aware of a problem you can solve. इसका बिजनेस डिफाइन करते हैं। Dishwasher not draining. ये एक प्रॉब्लम है, somebody is solving it, so you need to create awareness. कुछ भी हो सकती है नहीं, ठीक? Consideration. The consumer evaluates the solutions available. क्या है? Best dishwasher 2025. आगे क्या है? Decision. The consumer chooses where to buy the product. आपने क्या find किया? क्या कर रहा है? Buy Frigidaire dishwasher. जो कुछ नाम है यार, क्या लिखा है? समझ में आ रहा है किसी? Frigidaire dishwasher. Anyway, ठीक है? तो ये तीन चीजें हैं. You need to create awareness about your product. Second, they have to think, they have to consider, and then to make a decision about it. ठीक है? तो पाकिस्तान में सब चीज लैक क्या करती है? अवेयरनेस. किसी चीज की अवेयरनेस नहीं होती है. ऐसे ही है ना? आप कुछ चीज खरीदने आपको पता नहीं ये काम क्या करती है, कैसे करती है,
मकसद क्या है कि ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए whenever you are doing anything. It's not only about the product. कुछ भी आपकी सर्विसेज हैं, लोगों को SEO के बारे में नहीं पता. लोगों को मेटा बिजनेस स्वीट है जिसके अंदर आप मेटा एड्स रन करते हैं, लोगों को उसके बारे में नहीं पता. लोगों को गूगल एड्स के बारे में नहीं पता. ठीक है ना? तो you need to create awareness. मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता हूँ through Google Ads, through SEO, through Meta Ads. Now, अब कीवर्ड सर्च के बारे में बता रहे हैं हाउ इस तरह से कीवर्ड ये सब आपने देख लिया. Let's go to the next topic. उसमें पता आपको या वॉल्यूम चेक करना है, कीवर्ड डिफिकल्टी और इंटेंसिटी आपने देख ली थी. You should just keep in your mind. Now, make a keyword map. What is keyword map? To create a document matching each target keyword with a web page on your site that has the potential to satisfy search intent what the user wants. If you don't already have a page that satisfies search intent, you can plan to create as a part of your SEO strategy. वो बता रहे हैं कि आपके पास वेबसाइट है, उसका पेज है, वो आपके यूजर इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, then you need to create it. ठीक है? बात समझ में आ रही है? जब यूजर आपकी साइट पे आकर देखता है कि ये पेज जो कुछ लिखा हुआ है, जो कंटेंट मौजूद है, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, वीडियो जो भी कुछ है, इससे मैं I'm not getting satisfied with it. It means कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है? ना ये बता रहे कि आप इस तरह से लिस्ट कीजिए, आपको पता लगा कि हाउ टू क्रिएट कीवर्ड्स, वॉल्यूम, केडी सब कुछ आपने, और किस किस पेज पे आपने टारगेट कीवर्ड है, आपने किस पेज पे कौन सा कीवर्ड लगाना है. So you should keep a document like that. उसके बाद आ गया नंबर 3, create a content plan. अब content क्या है? Content plan is a document detailing what content you are going to improve or create. आपकी जो वेबसाइट पे आपका जो पेज है, उसमें जो content आप उसको improve अगर already है, तो you need to improve it, you need to optimize it. अगर नहीं है तो you need to create it. ठीक है? Content planning is a vital part of SEO strategy because search engine prioritize helpful content that satisfies search engine clearly and comprehensively, and there are many ways to make your content more search engine friendly. कैसे करेंगे? Go through the already published pages listed in your keyword map and consider the following question. क्या आएंगे? Does your content satisfy search intent? Very simply, पहले पता आपको. Is your content accurate and up to date? Of course, you have to. Does your page offer anything valuable that competing page don't? Is your content easy to read, well formatted and well structured? ठीक है? अब ये सारा काम आपके लिए कौन कर सकता है? आजकल तो यही है ना. ठीक है? आप ChatGPT को ये कमांड देंगे, I need a content about this which is easy to read, well formatted and well structured. वो आपको as एक चीज बना के देगा, well structured, well formatted and all keyword will be embedded in it. ठीक है? Okay, does your page use videos, images or other elements to support user understanding? ठीक है? Does your page have a descriptive title tags? ये पता आपको, HTML, H1 सब कुछ. Have you naturally incorporated relevant keywords into your content? Simple. वही हम जो पढ़ा है, keyword, title tags, meta tags, description, heading सब कुछ. ठीक है? Now let's move forward. Number 4, fix the technical. अब आगे technical issues. Fix technical SEO issues. Fixing technical SEO issues can boost your website visibility in search engine, so you should identify these issues while building your SEO strategy. ये क्या है? You can check for many technical SEO issues through Google Search Console. ठीक है? A free tool from Google. अच्छा, अब ये क्या होता है? सबसे पहले क्या? पेज इंडेक्सिंग. हमने कल इंडेक्स अपना पेज करवाया था, हमने साइट पे सबमिट किया था. आज अब दोबारा इसको देखते हैं how to do all this. ठीक है? वीडियो इंडेक्सिंग, अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो को लिंक आप इंडेक्स करवा सकते हैं. साइट में हमने कल कर लिया था कोर वेब वाइटल्स. आज हम देखते हैं ये क्या चीज़ है. You see what is HTTPS, manual actions, security issues. Let's see कि अब हम जाते हैं साइट मैप को देखते हैं कोर वेब वाइटल्स का. ठीक है? So let's see. वेबसाइट है. ठीक है? अब इसको हम देखते हैं. We use which tool? Google Lighthouse. हम जो आपका Google Search Console है उसको भी यूज़ कर सकते हैं.
इस काम के लिए कैन यूज इंडिविजुअल टूल विच इज कॉल्ड गूगल सर्च गूगल लाइटहाउस, ठीक है। आई क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट। ये बता दें कि आपका SEO 100% ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस भी ठीक है, एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी लो है, बट इट्स ओके, इट इज ब्रिंग्स ओके, परफॉर्मेंस व्हिच इज लो। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नीचे हमारे इनसाइट्स, ये आपके डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाले इसके कौन से मैट्रिक्स जो है क्या कहलाते हैं, क्या सॉरी वर्ड यूजिंग कोर वेब वाइटल्स, ठीक है, ये वाले कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। फर्स्ट काउंटिंग होते मीन्स कि आपका जो सबसे पहला इमेज आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है, वो 3.8 सेकंड में आ रहा है। सबसे बड़ा इमेज आ रहा है जो इंप्रेशन 5.6 सेकंड में आ रहा है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम 20 मिली सेकंड है, एंड स्पीड टोटल इसकी 5.0 सेकंड, व्हिच इज नॉट गुड, इट शुड बी एटलीस्ट 1.5 और 2 सेकंड मैक्सिमम, नो मोर देन दैट, ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि इसके इनसाइट्स हैं, इसको छोड़ दें, जो नहीं डायग्नोस्टिक्स हम ठीक कैसे कर सकते हैं। वो बता रहा है कि रिड्यूस अनयूज्ड CSS, reduce unused JavaScript, minify CSS image element, do not have explicit width and height के बाद images ठीक नहीं लगे, वो आपको ठीक कर देंगे, यहाँ पे image का है ही नहीं है, कब ठीक कर लेंगे। और ये reduce CSS and ये अब ये कैसे करेंगे, जो आइडिया है, ये आइडिया तो come back to your site, go to the dashboard. डैशबोर्ड में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल है, इसका नाम है लाइट स्पीड कैशे, लाइट स्पीड कैशे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये नहीं इंस्टॉल, व्हेन यू गो टू योर प्लगइन एंड टाइप ऑप्टिमाइजेशन इन टाइप लाइट स्पीड कैशे, तो आप मुझे दे देंगे, ठीक है। सो इस पर क्लिक करते हैं, देन वी कम टू द प्रीसेट्स, लिखा हुआ प्रीसेट्स, इसके जो प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं उस पर जाकर देखते हैं हमें ये क्या देगा। We don't need to do anything. कोई हमें इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना, we just go and simply click on presets and see what we can get from here. इसके 1, 2, 3, 4, 5 presets हैं, essentials, basic, advanced, aggressive, extreme. ये बता रहा है एडवांस रिकमेंडेड, आप पहले ये लेना, ठीक है। लेफ्ट पे काम होने ना अप्लाई प्रीसेट्स। अभी क्या बता रहे हैं, हम ये मेनली क्या करेंगे, एवरीथिंग इन बेसिक प्लस गैस मॉडल, गैस ऑप्टिमाइजेशन, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML मिनिफिकेशन जो से बताया मुझे, फ्रंट फॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, जावास्क्रिप्ट डेवलपर फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इनलाइन जावास्क्रिप्ट, DNS प्रीफेच फॉर स्टैटिक फाइल्स, ग्रामेटिकल कैशे, रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक फाइल, रिमूव वर्डप्रेस इमोजी, रिमूव नॉन स्क्रिप्ट टैग्स, जो कुछ चीजें अननेसेसरी वो सारा कुछ वैल्यू करके देगा, उनको कंप्रेस कर देगा। आई क्लिक अप्लाई, ओके, सब कुछ खुद कर देगा, ठीक है। मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, समटाइम नहीं होता है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं साइट को दोबारा ओपन करता हूँ, इसको बंद कर दिया, साइट मैंने दोबारा से ओपन की, यू हैव टू रिफ्रेश एंड ओपन, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ यहाँ से, स्टार्ट बस ये भी कर देगा, समटाइम कर देता है कि साइट के ऊपर डेटा थोड़ा जब इस पे कम है अभी कर देगा, साइट आपकी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम लेता है। सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए कोई मसला नहीं है, हम इसको दोबारा देखेंगे, थोड़ा सा इसने किया ठीक, थोड़ी स्पीड से इम्प्रूव किया, से 65 से 69 पे आया, कोई मसला नहीं। दोबारा चेक करते हैं इसको, हमने ये लगाया, लेट्स कम टू एग्रेसिव दिस वन, ठीक है, अप्लाई दिस,
Yeah, good. See? So it is accepted that, but still speed is a bit high, but don't worry about it. वो ठीक कर देगा, it means it is accepted. ठीक है, ये सारे के खत्म हो गया. ये थोड़ा सा रह गया, leave it. Why leave it? Because if you compress more, sometimes it can break your website. ये सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर को कंप्रेस कर रहा है, it can break the site. ठीक है ना? और देखिए हमें साइट हमारी ठीक है, साइट कोई इशू नहीं, साइट चल रही है, ठीक है ना? अगर हम ज़रा कंप्रेस करेंगे, साइट ब्रेक हो सकता है, ठीक है? ये आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, तो सही ना चल रहा है. अच्छा, बाकी क्या अब ये वाला 91 वाला देखते हैं क्या बता रहा है? Links rely on color to be distinguishable. कौन सा जी? ये कहते हैं आपके जो कलर हैं यहाँ पे ठीक नहीं है, उनको आप ठीक करेंगे, आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है? कहते हैं ये इनमें फर्क नहीं है, क्यों? ये इस पे लिंक लगा हुआ है. लेट्स सी ये कौन सा है? ये देखिए, ये लिख रहा था मैं ये फास्ट डिलीवरी. अब ये इसकी तरफ फर्क नहीं पड़ेगा, तो शुड बी डिफरेंट कलर, ठीक है ना? यू नो हाउ टू डू इट? यस, वहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे ग्लोबल पे, देन वी गो टू द लिंक्स, वहाँ पे जो लेट्स सी गो देयर, देन वी see कस्टमाइज. एक तरीका यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड प्लस वी कैन इवन डू इट मैनुअली. लेट्स सी ग्लोबल कलर्स लिंक्स, कहते हैं लिंक्स कलर आपका ये है, ठीक है? अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, आई कैन कम टू लेट्स से मेक इट light blue, like that. Let's see. ये change किया ये सब ये था ना? हम इसको नहीं कर देंगे, let's publish करते हैं. Let's see. When you hover it, then it's doing that. Anyway, so हो गया? Good? Like that. Now ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है? जब दोबारा फिर चेक करेंगे ये ठीक हो जाएगा. The link don't have distributable name. ये क्या चीज़ है? कहते हैं इन लिंक्स के ऊपर नाम नहीं लगा हुआ ये वाला. अच्छा, क्यों नहीं लगा हुआ? Let's see. ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं. क्या चीज़ है? देखते हैं इसको. ये वाला इसको. ये कहाँ पे है? देखें ना? इसके कुछ लिखा हुआ नहीं है. देखो यहाँ से लिखा है, but when I overall this it's showing me here खाली है और कुछ भी नहीं है इसमें. तो इसका कोई मकसद ये है कि वो कह रहा है इसको कुछ लगाएं, आप कुछ नाम लिखें, ये है क्या? यहाँ पे अगर फिर क्लिक ऑन इट वे विल गो, ठीक है? अब ये कहाँ पे आपके फुटर में है? फुटर का कैसे ठीक करेंगे आप पता? अगेन यू गो टू अपीयरेंस एंड कस्टमाइज. अच्छा, ये जो है ना वर्डप्रेस समटाइम हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं कस्टमाइजेशन. But if you are using any premium theme, उसमें फिर यहाँ से ठीक नहीं होता. उसमें थीम का अपना फुटर होता है, ठीक है? वो भी इजी है, मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फुटर, ठीक है? क्लिक ऑन फुटर, आपको मिलेगा डायरेक्ट फुटर, ये ठीक है? अब ये चीज़ हमने ये ठीक करना. अब ये कहाँ पे होगी? इसमें जो है ये 1 2 3 4 पे होगा होपफुली. सोशल को चेक करें. ये ऊपर है. ये वाला लगेगा. Let's see from 1 2 3 4 1 1
subscribe to email ये कहाँ पे है? नीचे होगा। नहीं ऊपर। कहाँ पे लगा हुआ है? Let's see. सोशल पे नहीं आ रहा। जैसे इसके बाद ये था फिर एंड कॉपीराइट सब फिर चाहिए वाला एंड इस पे हमें ये दिखाई दे रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड सब्सक्राइब सर ऊपर सर दोनों की हेडिंग तो देखे सेम फॉरहिम ये वो भी फॉरहिम शायद इसमें इतनी हार्श हुआ सर ऊपर भी फॉरहिम लिखा हुआ है। हाँ इसके ऊपर फॉरहिम लिखा हुआ है। लेकिन ये ना ये वाला तो ये दिखा रहा है अगर लेकिन देखें सर ऊपर हेडिंग तो दोनों की सेम है सर इस वजह से। ना ना फायदा नहीं है ये कुछ किस सोर्स से अभी सबसे नीचे ये चलिए अगर नहीं मिला था तो मसले हम बाद में देख लेंगे फिलहाल हम आगे चलते हैं लेकिन ये कि हम इसको ठीक करने का इनिशियल कैसे करते हैं ठीक है ये किसी ऐसे सोर्स का जो पता नहीं चल रहा उसके बाद में देखते हैं हमारा किसी नोटिस पे सबसे नीचे हेडिंग एलिमेंट नोटिस से कुछ हुआ आपकी जो हेडिंग है ये ऑर्डर होगी ठीक है मीन्स के जो बता दें H1 2 3 4 5 6 ठीक है अब ये H4 पहले ये H4 है बाकी लेट्स गो सी के ये बाकी ठीक है कि नहीं ठीक है कहाँ पे लगा हुआ है लिमिटेड टाइम ऑफ ये होगी ठीक है अब ये कहाँ पे होगी ये होगी एलिमेंट जो पे H4 ठीक है what is supposed to be let's see this 2.7 H4
इसी के साथ है ये नीचे भी सब चीज करनी पड़ेगी क्योंकि बोले ना ये 4 आ गई ये उसमें है ना अलग उसमें कंटेनर में इसको आप 2 कर सकते हैं, ठीक है 2 कर सकते हैं 2 नीचे 3 4 5 आ गई और इस यहाँ से भी ये क्या है इनको सबको H6 करें, ठीक है और फिर इसको 4 ये 5 ऐसे करते हैं, ठीक है इसको 4 ही रखें नीचे वाले 6 आ जाएगी इसके बाद यहाँ पे कोई लगेगी नहीं और नीचे इसकी इसको लेके आते हैं ठीक है साइज बड़ा होगा तो मतलब साइज छोटा है अभी अगर स्टिल शोइंग तो आप उसको देख लीजिएगा सीक्वेंस में ये पता चल गया आपको हमने क्या करना है यहाँ पे हमारा एटलीस्ट यू कैन सी इफ इट इज ग्रीन ये लाइक दिस इट इज अबाउट 90 ठीक है ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना आई मीन जो इसमें ये चीज़ें ना ये वाली रिड्यूस CSS इसको आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना ये तो आप खुद ही करना होता है ये आप खुद ठीक करनी होती है ठीक है ये तो मैनुअली होंगे आप जितना करेंगे उतना ठीक है लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा यू डोंट हैव टू ओवर ज़्यादा करेंगे आप साइड ब्रेक हो सकते हैं ठीक है ना ये डन हो गया ना वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक साइड में भी देख रहे हो हमने कल कर लिया था वीडियो है नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो अपने इंडेक्स करना इंडेक्स कैसे करवाते हैं ये आपके साइड है मेरे पास यहाँ पे ठीक है अच्छा अब इंडेक्स कैसे करवाते हैं पता है किसी ये वेरी इजी इंडेक्स कैसे करवाते हैं कि ये जैसे आपकी वेबसाइट है इसका ये मेन पेज है आपने मेन पेज को ऑप्टिमाइज कर दिया कंप्लीटली ठीक है फुल ऑप्टिमाइज हो गया कंटेंट भी टाइटल भी एवरीथिंग इज डन अब आपने क्या करना है इसको जैसे अभी आपने दिखा रहा है ठीक है यू हैव टू कम टू URL इंस्पेक्शन ये क्या करो URL इंस्पेक्शन इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लाके अपना URL पेस्ट करेंगे एंटर करेंगे तो चेक करेगा कि ये इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ ये बोलेगा इट इज ऑलरेडी ऑन गूगल पेज इज इंडेक्स्ड ऑलरेडी इंडेक्स्ड यहाँ क्या शो करेगा रिक्वेस्ट इंडेक्स आप दोबारा इंडेक्स करवा सकते हैं क्यों क्या आपने इसको दोबारा से ऑप्टिमाइज किया क्या किया आपने उसकी हेडिंग्स ठीक की हैं आपने लिंक ठीक किया है आपने जो भी कुछ था उसके अंदर वो ठीक किया देन नीड टू इंडेक्स अगेन क्योंकि जब गूगल करेगा वो टाइम लेगा क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा यू नीड टू इंडेक्स इमीडिएटली आप रिक्वेस्ट इंडेक्स करेंगे इसी तरह से आप कोई भी आपके पास इमेज है उसका लिंक कोई भी वीडियो आपकी साइट पे लगी उसका लिंक उठा के आप यहाँ पे डाल देना उससे इंडेक्स करोगे सिर्फ इसका फ़ायदा क्या होगा कि इमीडिएटली वो गूगल क्रॉल करेगा उसको आके और आपकी जो भी वो चीज़ है उसको इंडेक्स कर देगा इंडेक्स रिक्वेस्ट ठीक हो गया सिर्फ बार बार
मे बी आफ्टर 24 आवर्स और मे बी 2 days जब आप कोई नया काम करेंगे, ठीक है? समझ में आ गई इसकी? नाउ टू द नेक्स्ट वन। HTTP वो मैंने बताया था कोडिंग HTTP जो आपकी साइट पे लगा हुआ है, ये वाला लॉग साइन ये आपकी साइट पे लगा हुआ है, ठीक है? देखिए दिस इज HTTP, सो योर कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है ना? ये होता ही क्या, ये पहले की बातें थी, आज से 10 साल पहले जब ये नया शुरू हुआ था HTTPS कि आपकी साइट पे आपने SSL सिक्योर सर्टिफिकेट लाजमी लेना है, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, बट आजकल ऐसा नहीं है। Whenever you buy a domain, whenever you buy a hosting, it's already included in that, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने सिक्योरिटी फीस सारे हो गए ऑटोमेटिकली इसका, ठीक है? ये आपका हो गया। डुप्लीकेट कंटेंट, पेज विद एटलीस्ट 85% आइडेंटिकल कंटेंट, आपकी किसी पेज पे आपस में जो कंटेंट मिलता है ठीक है? ब्रोकन इंटरनल लिंक्स, आपके इंटरनेट पे जो इंटरनल लिंक्स हैं कौन से वाले ये शॉप नाउ का बटन है टू टेक टू द शॉप पेज, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, शुड ब्रोकन, ठीक है? robot.expire ये चीज़ नहीं आपके लिए, एंड रीडायरेक्ट चेंज इसको छोड़ दें, इनवैलिड स्ट्रक्चर डेटा, इसके भी हम बात करते हैं रोबोट्स पे और इनवैलिड स्ट्रक्चर डेटा। अच्छा, ये जो था रीडायरेक्ट मीन्स कि अगर आपका कोई पेज ब्रोकन है, आपका कोई पेज डिलीट हो गया है, अब देखो आता है 404 शुरू बताया था आपको 404 का, so you type something that the page is not there, 404 लिखा हुआ है, it means कि आपका पेज डिलीट हो चुका है, जो भी आप साइट को एक्सेस कर रहे हैं वो पेज वहाँ पे नहीं है, तो उसको आपको करना पड़ता है रीडायरेक्ट। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। Go to your SEO and ये देखिए ये लिखा हुआ रीडायरेक्ट्स, बट इट्स अ प्रीमियम टूल, पेड टूल है ये। अब इस पर क्लिक करेंगे ना अगर, तो ये देखने में कहाँ ले जाता है कि आप पे करें, तब मैं आपको बोलेगा आई शो यू कि आपको कौन कौन सा पेज आपका ब्रोकन है, तो उसमें आपने जाकर क्लिक करें। रीडायरेक्ट मैनेजर इज इंक्लूडेड इन योर SEO प्रीमियम, फिक्स ब्रोकन लिंक्स बिफोर दे अर्ज योर SEO, ठीक है? अच्छा, अब इसके लिए क्या है हमारे पास सब टूल्स हैं अलग से, वी गो टू प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन, हम यहाँ पे लिखेंगे रीडायरेक्ट, ये बता रीडायरेक्ट मैनेजर, रीडायरेक्शन ऑल इन वन में भी है, ये अलग से प्लगइन है, बाकी योस्ट पर है, ये सारा पेड है, ये 404 का है, ठीक है ना? अगर आप ये भी इंस्टॉल कर लेंगे या ये वाला भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बता देगा आपका कौन सा पेज ब्रोकन है और उसको किस पेज पर रीडायरेक्ट करना है। ये मैं अभी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, हम बात करेंगे, नोट डाउन करेंगे, विल डू इट आफ्टर, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है? नोट डाउन करेंगे। अब देख सकते हैं कि जो सर्विसेज पेड हैं आप उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं, या सब प्लगइन्स, फ्री प्लगइन्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे आपका इनवैलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है? हमने स्कीमा मार्क किया, स्कीमा मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Incorrectly formatted schema markup which can prevent search engine from understanding and displaying your content correctly. अब आपके पास आपकी जो वेबसाइट है, and इसका जो स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है? ये पिक्चर्स हैं, सब मेन्यूज हैं, स्कीमा मार्कअप गूगल को रिप्रेजेंट करता है, अलग से रिप्रेजेंट करता है आपका ये सारा स्ट्रक्चर एक बना के कि ये इसकी साइट है, तो गूगल को इसको डिस्प्ले करता है सर्च, ठीक है? वो कैसे करता है? Very easy. How? Let's come here. यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्या? SCHE schema markup generator. It's online. ठीक है? इस पे क्लिक कर दिए. ये बड़े गौर से देखना. टेक्निकल थिंग, इट्स अ विनिंग एज। अगर आपने अपनी साइट पे ये किया होगा स्कीमा मार्कअप, तो यू कैन विन योर SEO। तो बहुत सारे इसमें डायरेक्ट नहीं करते इसको, ठीक? अच्छा, अभी क्या पूछ सकते हैं, विच स्कीमा और जी मार्कअप विच यू लाइक टू क्रिएट, क्या करना है आपकी साइट किस किस्म की है? रेस्टम बनाएंगे, इवेंट्स है, एक न्यू पेज है, हाउ टू गेट जॉब पोस्ट टू लोकल बिजनेस, ठीक है? से लोकल बिजनेस सिंपल, ठीक है? अब पूछ रहा है कि आपके बिजनेस लोकल बिजनेस किस टाइप का है? हमारे पास
उसके वो लोकल बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। तो नाम क्या बिजनेस का? लीसा क्लोथिंग, या ठीक हो गया। अच्छा, इमेज यूआरएल मींस कि आपका जो लोगो है उसका यूआरएल क्या है, वो हम कहाँ से लेंगे? लेट मी शो यू, गो टू साइट, मीडिया, ये लोगो क्या है? दिस, अच्छा ये ठीक है, इस पर क्लिक करें, ये दे रहा है इसका, click copy link to clipboard, copy it, come back here and then paste it, so ठीक है, सही। अब URL किस चीज का? आपकी वेबसाइट, मैंने कॉपी किया है इसको, आपका फोन नंबर मैं अपना दे दूँ, ठीक है। प्राइस रेंज आपकी क्या है? कैसे मीडियम प्राइस रेंज, ठीक है। अब ये एड्रेस सारा आपने कॉपी कर लिया, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। स्टेट इसको जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मींस कि आप ये गूगल से ले सकते हैं और उसमें क्या होगा कि आपकी वो एग्जैक्ट लोकेशन कॉपी करके गूगल पे दे देगा, ठीक, एग्जैक्ट लोकेशन। लेट्स से अगर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आई से बताऊँ आपको गूगल मैप्स, ठीक है। वो आगे ठीक है, ये अब स्ट्राइलगीर के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हमें कहाँ से मिलेंगे? आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं किसी और तरीके से, और जो यहाँ पे हमें जो मिलने हैं कहाँ से मिले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसके टॉप जो इसका यूआरएल दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है दिस इज स्ट्राइलगीर पाकिस्तान एट, ये जहाँ पे एट लिखा हुआ है ना, जी सर, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी जहाँ लिखा ना, यहाँ पे लिखा कॉमा लगा हुआ है, आप ये कॉपी करें, ये पहला, go back here, longitude, and go back here and longitude इसका, ठीक है, अब जियो कोऑर्डिनेट, when you click on it, ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कॉपी करके इधर जाएगा, मुझे दिखा दिया उसको, फैच कर लिए। अब नाउ यू कैन पुट योर टाइमिंग्स, ओपन 24/7 है, जो आपके सोशल प्रोफाइल्स है, आपका फेसबुक है, यू कैन ऐड योर फेसबुक लिंक, यू कैन facebook.com लाइक दैट, ठीक है। अब यू कैन ऐड योर टाइमिंग्स, जो आपकी टाइमिंग्स हैं, यू कैन से 24 आवर ओपन, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। ऐड डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट आपका ऐड करते हैं यू वांट, वजीफ के अंदर जो भी कुछ है तो उसका हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी देखिए, अब इसने ये कॉल्स स्कीमा मार्केट में सारा, अब आप इसमें यहाँ से कॉपी नहीं करना चाहिए, नो वे, नो, कॉपी फ्रॉम हियर, क्लिक ऑन इट, कॉपी हो गया। अब ये पेस्ट कहाँ पे करना है? क्वेश्चन, गो बैक टू द वेबसाइट, वैसे आई थिंक यहाँ पे बता रहा होगा कि आपने कॉपी कहाँ पे करना है, यूज इसके मार्कर एंड लेट्स गो बैक हियर। हमने कल एक प्लगइन ऐड किया था कोड स्निपेट के नाम से, इसका जाने फुटर, copy that structure in the body, ठीक, so and then save this changes, सही हो गया। Let's see if I can do it here, so उसको कर दो, अच्छा अब हम अभी खत्म नहीं हो रहा, you go back,
इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इसका स्कीमा मार्कअप क्या दिखा रहा है। पता लग गया होगा, लेकिन अभी लग तो गया पर अभी वैलिडेट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, we go to schema.org or we go to Google Structured Data Testing Tool. We click on it. Go to the which result test or go to the schema marker validation. Let's see first I test it. मैं यहाँ पे डालूंगा URL of the website. बस URL क्या हमारे पास click on test URL. Check it is detected, crawl successfully, सब कुछ इसको मिल गया, ठीक है। नॉन क्रिटिकल इशू डिटेक्टेड क्या है, लेट्स सी इशू क्या बता रहा है। बस नॉन क्रिटिकली टू नॉन कौन से डुप्लीकेट का कुछ चीज़ डुप्लीकेट हो चुकी है, ये लिंक दो दफा लग गया वहाँ पे, तो निकाल भी देंगे, ठीक है, ना निकालेंगे कोई समझ नहीं, कोई इशू नहीं इसका, ठीक है। ये हमने इसको दिया, इसको ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं, इसको हम वैलिडेट करवाते हैं गूगल के पास, इसको क्लोज कर, ठीक है। Then come on, go to schema validation, markup validation. Click on that, and then paste your URL, and then run test. Good. It said detected, no errors, no warning, 5 items. और mission and reference, error भी ऐसा कुछ करना था कर लिया, ठीक, everything is there. Fine, ठीक हो गया, इट्स वैलिडेटेड ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब हमारी वेबसाइट गूगल पर जिससे पहले भी हो चुकी थी, वैलिडेट भी हो गई है। अब जो हमने उसको स्ट्रक्चर बना के दिया है, अब वो चीज़ हमें शो करवाएगा हमारे सर्च पर, ठीक हो गया। ये अभी नहीं आएगी, इट विल टेक सम टाइम टू अपीयर इन द सर्च, ठीक हो गया ना, समझ में आया ना। इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए वीडियो भी बन रही ताकि आप दोबारा इसको देख सकें। अच्छा, ये भी अब आपका का स्कीमा आपका लग गया, कोई इशू तो रहा नहीं, बाकी सिर्फ ये एक रह गया था bot.txt, वो भी दिखा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी नोट डाउन करेंगे हम बाद में बताऊंगा। अभी के इतने काफी ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट नेट न्यूज़ वर्किंग प्रोसेस, या आपकी पब्लिक रिलेशन डिजिटल हो, ठीक है। आप पोस्ट इफ यू हैव योर ओन फेसबुक प्रोफाइल एंड एनी इंस्टाग्राम, जो भी सोशल आपके हैंडल्स हैं, और वहाँ पे न्यूज़ वर्किंग कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और पोस्ट करेंगे। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, अब आपकी साइट पे ब्रोकन लिंक्स होते हैं, आइडेंटिफाई ब्रोकन लिंक्स पॉइंटिंग टू योर ओन और कंपटीटर website and try to get them replaced with working links to your website. ये तभी आप कर सकते हैं जब आप अपना खुद का वेबसाइट डेवलप करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट नो व्हाट, क्योंकि एक लिंक है ही तो ब्रेक कैसे होगा, पहले बनेगा तो ब्रेक होगा, ठीक है। फिर आगे गेस्ट पोस्टिंग, राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स फॉर रेलेवेंट एंड रेपुटेबल वेबसाइट, ये भी एक नोट कर लें, गेस्ट पोस्टिंग भी आपको पढ़ना अलग से, ठीक है। ये आगे चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यू नीड टू राइट अ क्वालिटी कंटेंट और आर्टिकल, पता है जो कॉलम लगा होता है अखबारों में लिखते हैं आर्टिकल, इससे वही चीज़ है कि आपने आर्टिकल लिखना है अपने बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, ठीक। लिंक पे क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट दैट नेचुरली अट्रैक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल ओरिजिनल, देखिए ऐसा कोई लिंक क्रिएट करना आपने कि जो मतलब बेटिंग, बेट क्या होता है, बेट उर्दू क्या बोलते हैं, वो जो मछली के शिकार के लिए लगाते हैं कांटे में, कुंडी, कुंडी, कुंडी का क्या लगता है, बेट, इंग्लिश में उसको बेट बोलते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे, हाँ मतलब समझ आ गया, बेट
ठीक है, तो आप उस तरह का कोई लिंक क्रिएट करके कंटेंट पे लगाना है, ठीक है। बिकम अ सोर्स, रिस्पॉन्ड टू मीडिया रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्री इमेजेस एक्सेट्रा। ये आपके जो आते हैं रिप्लाईज आपके फेसबुक वगैरह पे या आपकी यूट्यूब सोशल हैंडल उस पर आपने उनको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो दैट्स व्हेन यू कैन क्रिएट बैक लिंकेज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, डिसाइड हाउ टू ट्रैक योर एसईओ। अब एसईओ के लिए क्या ट्रैक करेंगे? मैंने कल बताया था गूगल एनालिटिक्स मैंने इंस्टॉल किया था आपकी साइट पे। सी अच्छा, अभी ये हमें यहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं दे रहा कि आपको योर वेबसाइट इससे मुझे एक्सेस नहीं दे रहा कंप्लीट एक्सेस इनसफिशिएंट परमिशन इन सर्च उसको। तो कोई मसला नहीं, हम इसको आगे चल देखते हैं। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि ये देखिए आपके लास्ट और ये पेज में ये पेज व्यू हुआ है, 3 व्यू सेशन 3 engagement 0, ठीक है ये चीज़। अब if I click here analytics on this link, it will take me to the Google Analytics main page। ये डेटा ट्रैक करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और सूचना बोलने की बात आपको, एसईओ एज इसकी मेन फील्ड है। अब ये जो एनालिटिक्स है ना, अगर कोई इसी में अपने आप को एक्सपर्ट क्या कर ले इसी में, ठीक है, इसे बोलते हैं डेटा साइंस। यू कैन मेक गुड। क्या दिखा रहा है आपके तरफ से सारे रिपोर्ट, स्नैपशॉट, रियल टाइम रिव्यू, ओवरव्यू, रियल टाइम पेजेस, लीड्स, ड्राइव सेल्स, सारा कुछ इसके अंदर है। अब ये दिखा रहा है आपके पेज स्क्रीन, पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास कि आप ऑफ कोर्स हमारी साइट में देखिए कुछ चीज़ है नहीं। लेट मी शो यू। अगर मेरे उसकी और साइट है, लेट्स से सारी कौन साइट्स है, इस पे तो कुछ भी नहीं होगा साइट के। इस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी इसके पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एकदम आई है एक विजिटर, फिर एक है, फिर 14 दिसंबर कोई नहीं है, फिर इस तक कोई नहीं है, फिर आगे आया, फिर इस तक आपने बता रहा है। अब नीचे आ गया इसलिए कुछ नहीं। सॉरी, ये मेरे पास पुरानी साइट्स हैं, इनकी खत्म हो चुके हैं। ये दिखा रहा है आपको कि आपके पास टोटल 59 विजिट्स हैं एंड कौन कौन सा पेज विजिट किया, इसकी डिटेल नीचे आ रही है। बुकिंग का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, सर्विस पेज, थैंक यू पेज, अबाउट अस पेज, ड्राइवर फॉर्म, कैलरी, कंप्लेंट फॉर्म, बुकिंग स्टोर, ये सारे फॉर्म लोगों ने विजिट किए। व्यूज़ दिखा रहा है कि 1659 व्यूज़ हैं और एक्टिव यूजर्स के 1188 हैं एंड व्यूज़ पर एक्टिव यूज़र 1.52 एवरेज है एंड एवरेज एंगेजमेंट पर टाइम पर एक्टिव यूज़र 19 सेकेंड है। एक यूज़र 19 सेकेंड मिनिमम यूज़ किया। बुकिंग पे लोगों ने आगे 1 मिनट एंड 9 सेकेंड स्टे किया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको दिखा रहा है कि आपका कौन कौन से पेज कितना लोग कैसे देख रहे हैं। इट्स नॉट ओनली दिस, देयर इज टू मच हियर, ठीक है। If I come and click on real time overview, तो आपको दिखा दिया कि रियल टाइम में आपकी साइट पे कौन है, अभी इस वक्त आपकी साइट पे कौन है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है 1 यूजर एट द मोमेंट, वो कौन है, कहाँ पे है, लेट्स सी, दिखाएगा मुझे। यस, कहता है 1 यूजर इस वक्त एंड
ये दिखा रहा है वैंकूवर में, ये दिखा रहा है एक विजिटर आपकी साइट, तो आपके रियल टाइम में पता है कि आपकी साइट पे कौन कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये साइट वहाँ पे है, हैबिट्स एक्सिबिशन इन कनाडा इन वैंकूवर, वहाँ पर दिखा रहा है विजिटर्स। उसके बाद रियल टाइम में इस पर कौन कौन सा पेज ओवर खोला हुआ आपको ये भी दिखाएगा, कोई भी नहीं फिलहाल छोड़ दो इसको। अच्छा, कम टू एक्टिव यूजर 1100, न्यू यूजर 1100, एवरेज एंगेजमेंट रेट every second सेशन 150, 1300 सेशन टोटल। अब ये दिखा रहा है कि कौन कौन सा सोर्स से लोग आए, ट्रैफिक, टॉप ट्रैफिक एक्विजिशन, ठीक है। इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, डायरेक्ट, बिंग, फेसबुक, सही। अभी जो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं बेसिक यूज, गो टू एडवांस, लीड्स में जाकर देखते हैं क्या होता है। लीड्स में लोगों की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये बता रहा है कि नवंबर 16 से 22 तक 100% रही है, वीक 107%। आई मीन ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपने बैठ के स्टडी करना है इसको, लेकिन अभी आप कर नहीं सकते हैं कि आपको जब तक आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाएंगे आप इन चीज़ों के बारे में लगेंगे, बात ठीक है। अच्छा, अब ये देखें दिखा रहा है एक्टिव यूजर बाय सिटी, इस सिटी में 300 हैं, वैंकूवर में इतने हैं, एबर्ट्सफोर्ड में इतने हैं, मिशन में इतने हैं, शिटी बैग में इतने, जो भी जिस तरह से दिखा रहा है। सोर्स कौन कौन सा है, इंस्टाग्राम का, गूगल का, फेसबुक का, बिंग का, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स के कौन कौन से लोग, ये दिखा रहा है टोटल 1109, ठीक है। कम टू यूजर एक्विजिशन की, यूजर एक्विजिशन में यूजर ने क्या हासिल, वो लोग क्या व्हाट दे आर गेनिंग, ये पेड सोशल, इतना ऑर्गेनिक, ये डायरेक्ट, ये अभी तो आपको लगेगा ये कुछ भी, लेकिन ये इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की थी अपनी वेबसाइट पे, अपने बिजनेस पे, तो हमें क्या रिजल्ट मिले। अब ये दिखा रहा है पेड सोशल, ये सोशल पे हमने कोई पेड लाइक इस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में ऐड रन किया, उसके थ्रू हमें ये चीज़ मिली है। हम जान सकते हैं यहाँ से कि अगर ये सही है नहीं सही। मुझे अगर 600 बताया 665 यूज़र आए मेरी वेबसाइट पे, तो उसके जरिए मैं जान लूँगा कि हाँ ये क्या ठीक बता रहा है कि बता रहा है। मे बी आई नीड मोर, एक बात है ना कि अगर इफ आई स्पेंडिंग लेट्स से 2000 रुपीज़ पर डे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कम से कम 200 लोग तो लगाने चाहिए मेरे साइट, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ से देखता हूँ कि बाकी जो मैं स्पेंड करूँ क्या वो ठीक है, सही। ऑर्गेनिक मीन्स कौन से जो हम कर रहे हैं, SQ2 इतने आ रहे हैं 277 ऑर्गेनिक, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है ऑर्गेनिक की जो हमेशा रहती है, ये खत्म हो जाएगी, आज पेट खत्म हुई, आपका पैसा खत्म हुआ, खत्म हो जाएगी, पर ऑर्गेनिक हमेशा रहेगी, ठीक है ना। डायरेक्ट सोर्स से 4 आ रहे हैं, सोशल ऑर्गेनिक से 51 आ रहे हैं, इसी रेफरेंस से इतने आ रहे हैं, पेड सर्च जो मैं गूगल एड से इतने आ रहे हैं, अदर पेड से 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डेटा सर्च कर सकते हैं सारा इसका, कि आपको कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और फिर आप उस तरह से आगे चल सकते हैं, ठीक है। ये जो दिखा रहे हैं लैंडिंग पेज, क्या कौन कौन सा पेज आपका कर रहा है, यूज हो रहा है, कौन सा लोग देख रहे हैं उसको। कॉन्टैक्ट अस का पेज 57 टाइम्स, बुकिंग का पेज 30 टाइम्स, सर्विस का पेज 24, नॉट सर्विस कौन सा पेज, थैंक यू पेज, ड्राइवर फॉर्म, बुकिंग टू अबाउट अस प्लेटफॉर्म सारा ये देखिए साथ साथ दिखाता है कि कितने सेशंस हुए, कितने यूज़र हैं, कितने नए यूज़र हैं और कितना टाइम स्पेंड किया किस ने, ठीक। इसके थ्रू आप अपनी साइट को जान सकते हैं कौन सा आपका पेज ज़्यादा काम कर रहा है, उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या है उसने भी ये दिखा रहा है हमें, एंड क्वेरीज सब कुछ वही चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है
क्या उसका जो गूगल सर्च कंसोल उस पर भी हम जाकर देखेंगे, वो भी कुछ दिखाता है अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ साइट पे कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो भी जाकर देखेंगे। ये खुला मेरे पास यहाँ पे सर्च कंसोल, लेट्स सी यहाँ पे लेट्स सी ये देखिए, ये दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट क्वेरी रिस्पॉन्स में से लोगों ने क्या टाइप किया, केबाब फ्लोरेंस, केबाब सटेंडर, केबाब फ्लोरेंस। ये स्पेनिश वेबसाइट है कंसर्निंग अबाउट सम फूड स्टफ, ठीक है। इस पे इस कीवर्ड पे इतनी क्लिक्स मिल रही है, इस पे इतनी क्लिक्स मिल रही है, इस पे इतनी क्लिक्स मिल रही है, ये सारा हमें दिखा रहा है, ठीक है। और कौन कौन सा पेज खुल रहा है ये देखेंगे, ये साथ साथ दिखा रहा है लिंक्स, ठीक है ना। और कौन कौन सी कंट्री में खुल रही है, मोस्टली स्पेन, यूके, नेदरलैंड, पोलैंड, सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्पेन में चाहिए वही, ठीक है। डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो रही है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सेकंड डेस्कटॉप, थर्ड टैबलेट, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ें हमारे हेल्पफुल होती हैं फॉर नो द डेटा ऑफ द वेबसाइट के वो क्या रन कर रहा है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 7 ऑप्टिमाइजिंग